Kukrejas had to shift from Pakistan from their native village and migrate to India. Came and settled down in Jabalpur, Madhya Pradesh, Narmada Kinare. Family of 7 children, 4 brothers, 3 sisters. Mr. J.S. Kukreja was the second from top. Lost his father, Sardar Kesar Singh Kukreja, immediately after the retirement of his father from the police. Mr. J.S. Kukreja was an army man, lieutenant, got into the IPS through the emergency quota service. Lost his eldest brother, a leading ENT surgeon of Jabalpur, Dr. I.S. Kukreja. 2 brothers younger to him, 3 sisters younger to him, all got married. Old mother. Remarkable story of a man who came with nothing to India and rose to become the last Inspector General of Police, Madhya Pradesh, and that to the undivided Madhya Pradesh, which included Chhattisgarh. After him, the next man was the DGP. His story, his humble story, and as he always said, others scream their achievements, I whisper them. Come along, let's go and track his journey. As you all know and also aware that after independence, integration of 565 independent states was the biggest problem that India had to face. And it was Sardar Patel who was given charge of integrating these states, which was one of the most difficult jobs he had done. They were important, most of the states had submitted, but there were some states which were resisting, and therefore it became necessary that some action should be taken. But the action that Sardar Patel took was, he was cajoling them also and threatening them also. And one of the biggest problems was Hyderabad, because Hyderabad in the central of the country wanted to be independent and wanted to be a part of Pakistan, which was just not possible because of so many factors. And therefore the government of India decided that Hyderabad, they had been doing a lot of mischief, the Razakars were getting out of control, and therefore the government of India decided to do some police action there. And in that, the major role was played by Madhya Pradesh Police Special Armed Force, in which Mr. Kukreja, who was the commandant of the battalions there, posted there, he was the person who was all the time present at the borders of Hyderabad, conducting operations against the Razakars, and very successful operations. And in that, not only Madhya Pradesh Police, but he was also looking at, there were camps of practically all over the country, from all over the country, police forces had joined him. And it was a very important event where Mr. Kukreja played a very important part during the Hyderabad action. What I know of Mr. Kukreja was when he was in the dacoity area, and there he did a lot of good work, and he was a lot of operations he had done against the dacoits, and Mr. Kukreja was well known in that area, and he knew the area and the ravines, and I must give credit to him that he did a lot of good work there. So I have a lot of respect for him. I've been very closely associated with him when I was very small. I'd say about 4 or 5 years old when Mr. Kukreja, he had joined the police, and at that time I was very small, but I know him since then, and I have great respect for that man. 2-3 वाक़या मेरे पिताजी के साथ जो मुझे बहुत विविडली याद हैं और जो बहुत मज़ेदार वाक़या हैं, वो ज़रूर शेयर करूँगा। एक तो डेकॉइटी वाले एरिया के वाक़ये हैं, 2 बड़े मज़ेदार वाक़या हैं। एक वाक़या तो ये जब एसपी मुरैना थे, जिनकी तस्वीर भी मैं शेयर करूँगा वीडियो में, तो इनको एक पर्ची मिली। मुखबिर हुआ करते थे, डकैतों के भी मुखबिर होते थे, पुलिस वालों के भी मुखबिर होते थे। तो इनको एक चिट्ठी प्राप्त हुई जिसमें लिखा गया था कि डिप्टी साहब, अब की बार तो 100 फीट दूरी पे खड़े थे, अगली बार थोड़ा ध्यान रखना, नहीं तो गोली मार दूंगा।
तो ये चिट्ठी लिख के दी थी लाखन सिंह ने, जो बहुत ही ड्रेडेड डेकॉइट था उस टाइम पे। ये घर से निकले थे पिताजी और ओपन जीप थी, और उस दिन इत्तेफाकन ये इनके पास पिस्तौल भी नहीं थी और इनका गार्ड भी नहीं था, हो जाता है कभी किसी वाक़या में। और लाखन झाड़ियों में छुपा हुआ था, जो पिताजी ने मुझे बताया। देखिए इसका कोई वेरिफिकेशन तो मैं दे नहीं सकता। तो उसमें ये भी मुखबिर ने बताया था कि कुकरेजा साहब आपकी पीठ थी तो उन्होंने आपको गोली नहीं मारी। तो ये उस टाइम का पिताजी बहुत बताते थे। और ये बाद में बहुत सालों बाद मेरे ख्याल से पान सिंह तोमर ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया था कि बागी रहते हैं बीहड़ में, डकैत तो पार्लियामेंट में रहते हैं। तो उस टाइम के डकैत में पिताजी का कहना यह था कि बहुत ही कम डकैत थे जो बहुत ही छोटी हरकत करते थे, बड़े लोगों को लूटते थे। और जिसमें जैसे मैंने बताया, वो बताते थे मान सिंह जो था, जिसका बहुत लंबा टेन्योर रहा और जिसकी गैंग अपने घर वालों से ही बनी हुई थी, उसने पूरे अपने कैरियर में जितने साल वो डकैत रहा, कभी भी कोई ऐसा हादसा नहीं आया कभी किसी लड़की या महिला को छेड़छाड़ करी हो। दूसरा किस्सा जो था, एक हमारी पिताजी की पिस्तैनी एक .32 WN स्मिथ पिस्टल थी, जो मेरे दादाजी के पास थी, सरदार केसर सिंह कुकरेजा, फिर पिताजी के पास आई, आज मेरे पास है, लाइसेंस्ड वेपन है। तो मुरैना में ही ये कहीं से आए थे, तो माताजी के साथ बैठे हुए थे और खाना लग रहा था, तो इन्होंने वो पिस्तौल उठाई। इनको लग रहा था कि मैगज़ीन से इन्होंने जो कार्ट्रिजेज हैं वो हटा दिए हैं, वो जबकि लोडेड थी। और इन्होंने माताजी को, मेरी माताजी सामने बैठी थी, तो इन्होंने उनके बिल्कुल सामने करके बोला, देखो कैसे चलती है गोली, और इन्होंने फायर कर दिया। एन वक्त पे इनका हाथ ऊपर चला गया और एन वक्त पे गया, और देन ही रियलाइज़ किया ये तो लोडेड पिस्तौल थी। तो ऐसे 2-3 वाक़या बहुत मज़ेदार थे, बहुत लंबा टेन्योर रहा। इन्होंने रूपा पंडित को देखा, जो हमारे पिताजी बोलते थे बहुत ही हैंडसम आदमी था। रूपा पंडित को अल्टीमेटली दोस्ती करके एक पुलिस वाले से दोस्ती कराई गई, और उसका भी बड़ा एक अजीब गरीबो किस्सा है कि फिर उसको मारा गया। लाखन थे, पुतली बाई थी। बाई दी एंड 1960 तक ये डकैती मैनेज पूरा ख़त्म हो चुका था। तो बहुत मेमोरीज थी। परम आदरणीय श्री कुकरेजा साहब का मध्य प्रदेश होमगार्ड्स में 2 दफ़े का टेन्योर रहा है। इस दौरान मध्य प्रदेश होमगार्ड्स में जो श्री कुकरेजा साहब ने विभाग के लिए किया वो अस्मरणीय है। आदरणीय कुकरेजा साहब ने विभाग को पुलिस के समकक्ष लाने के लिए अस्मरणीय प्रयास किए हैं। जवानों, अधिकारियों की ड्रेस के बेमिसाल मुद्दे पेश किए हैं, जिनकी स्वीकृति शासन से लेकर उसको लागू कराया है। विभाग को परमानेंट करने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास कर इसको कार्यान्वित किया गया। कुकरेजा साहब जब प्रिंसिपल थे तो इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे अपनी ट्रेनिंग में कि सुबह 6 बजे वो अपने ग्राउंड में आ जाते थे और सुपरविज़न, अपने पर्सनल सुपरविज़न करते थे। डिप्टी एसपी की ट्रेनिंग में बंक्स में जाते थे, बंक्स के देखते रहे कि डिसिप्लिन है, बंक के बिस्तर ठीक कर रहे हैं और पढ़ाई लिखाई के वो है। और खुद क्लास में जब हम क्लासेस लेते तो पीछे बैठ जाते थे। पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज के प्रिंसिपल के पहले कुकरेजा साहब सागर एसपी भी रहे। सागर एसपी थे जब 58। हाँ, और हमने पोस्टिंग सब की
लेकिन आपका जो साथ का बैच था क्या गजब का बैच था? आप थे, अशोक पटेल साहब थे, जे.एन. दीक्षित साहब थे, जी हाँ। पिप्पल साहब थे, हाँ। यदलवार भी थे, यदलवार भी थे, के तिवारी थे। तो ये तो बड़ा एक आप लोग का दिग्गज बैच था। हाँ, दिग्गज बैच था। और सिर्फ सबसे ज़्यादा पद्मश्री, 2 पद्मश्री है इस बैच में। अशोक पटेल साहब और जे.एन. दीक्षित साहब, जे.एन. सक्सेना, जे.एन. सक्सेना, सॉरी जे.एन. सक्सेना, 2 पद्मश्री थे उसमें। 2 पद्मश्री। My heartfelt condolences on the first death anniversary of Uncle Kukreja, who was known in the police department as a straightforward officer. He was also instrumental in developing tennis courts in police headquarters as well as Arera Club. उनकी लाइफ, उनके रहने की स्टाइल, यूनिफॉर्म पहनने की स्टाइल, दुनिया भर को हर पूरा फोर्स का हमारा आदमी पुलिस का सब उसकी अप्रिशिएट करता था साहब। हर एक आदमी का जिसकी कोई सोर्स नहीं थी, न कोई राजनीतिक पहुंच थी, वो भी अगर चला जाए उनके पास बंगले में तो हमेशा उसकी हेल्प करते थे। वो कोई भेदभाव नहीं था उनमें। काम करने वाले के साहब ने कदर की। ये पढ़ते थे उस वक्त, ये मिले बाहर, इनको हमने बताया कि साहब से मिलना है। बोले हाँ हाँ, इन्होंने खबर दे दी अंदर। मेरे पास पार्कर पेन का एक बड़ा अच्छा पेयर किसी ने भेंट किया था। अब ये बच्चे थे, लोग छोटे, इनको भी इंटरेस्ट रहता है शेरू और वक्त। इनको मैंने दिया, बड़ी कोशिश की तुम रख लो यार। वो नहीं अंकल मैं नहीं रखूँ। मतलब वो फादर का कितना असर पड़ता बच्चों पे, ये बता रहा हूँ मैं। इन्होंने नहीं लिया पेन मेरे से, बिल्कुल नहीं मेरे को। जबकि वो पेन देख के तो कोई बच्चे पढ़ने वाले तो जब लपक के ले लेते थे। तो उनकी फैमिली ऐसी। Post retirement, Shri Kukreja purchased land on this very road, the Bhopal Raisen road, and led a very active life as a farmer. And I could track down one of his very old memories when he inaugurated Thana Bilkhiria. So let's go now to Thana Bilkhiria first. बिलखिरिया थाने में मैं इस वक्त हेड साहब बेनी प्रसाद मीना जी के साथ खड़ा हुआ हूँ। ये वो जगह जो स्वर्गीय जे.एस. कुकरेजा, जोगेंद्र सिंह कुकरेजा जी ने उद्घाटन किया था। बड़े भक्त थे कुकरेजा साहब कंकाली माता मंदिर के। जो आप डायरेक्शन देख रहे हैं, यहाँ से मात्र करीब 1 या 1.5 किलोमीटर आगे है वो बाजार जहाँ हर वक्त कुकरेजा साहब 2 मिनट के लिए गाड़ी रुकते थे और अपना रिस्पेक्ट, इनको अपना एक ध्यान करके फिर आगे बढ़ते थे। और यही सबक उन्होंने, यही सीख उन्होंने सबको बताई। तो एक आदत सी बन गई सब लोगों की, जो उनके संपर्क में आया, कि 2 मिनट के लिए यहाँ पे जरूर गाड़ी रोको। प्रॉपर बिलखिरिया पहुंच गए और यहाँ पे बिलखिरिया में एक दुकान थी, एक ढाबा था। ये जो मैं फोकस कर रहा हूँ बाईं तरफ, ये ढाबा था एक सरदार जी का। और ये जो आपको बाईं तरफ फोकस करिए अश्विनी, आप बाईं तरफ ढाबा था और सरदार जी का हाथ टूटा हुआ था। तो जब भी कुकरेजा साहब अपने फार्म जाते थे जो अभी अपन चल रहे हैं, तो वो सरदार जी के यहाँ ढाबे पे चाय जरूर पीते थे। सरदार जी के यहाँ चाय पीने जो उनके साथी आते थे, उनका ये कहना था कि सरदार जी के ढाबे में बेशुमार बदबू आती थी, बहुत ही अनहाइजीनिक टाइप का। ये बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे मैं ले आया हूँ जहाँ पे सरदार जी का ढाबा हुआ करता था। ये बात है वर्ष 85, 86, 88 के आसपास की। तो सरदार जी का एक दिन देहांत हो गया, तो कुकरेजा साहब ने अपने लड़के को एक लिफाफा दिया कि वो उनकी विधवा को जाके दे आना, सरदार जी की विधवा को। तो सरदार जी की विधवा को लिफाफा जब देने आए तो रास्ते में खोला लिफाफा, उसमें 10,000 रुपए पड़े हुए थे। तो लड़के ने पूछा कुकरेजा साहब से कि ये आपने 10,000 रुपए क्यों दिए, क्या रिश्ता था सरदार जी के साथ आपको? तो गरीब आदमी था, इतना गंदा ढाबा था, इतनी बदबू आती थी उस ढाबे में। तो कुकरेजा साहब के आंखों में से आंसू आ गए और एक ही शब्द बोली
कि ये पार्टीशन के पहले पाकिस्तान में हमारे गांव का था और वो गांव का नाम था गुजरांवाला। तो ये मोहब्बत थी उस जमाने में गांवों की आपस की, जो अब पाकिस्तान में गांव चला गया। ये जमीन जो आप देख रहे हैं रायसेन रोड पे बिल्कुल सोम डिस्टिलरी से लगी हुई है। सोम डिस्टिलरी की तरफ लीजिए राइट साइड पे, ये देखिए ये सोम डिस्टिलरी की आपको तस्वीर दिख रही है। इससे बिल्कुल लगी हुई जमीन थी कुकरेजा साहब की, और जिसको उन्होंने वर्ष 2000 में बेच दी थी अपनी हेल्थ के कारण। और ये जो सामने का पैच दिख रहा, यही रोकी अश्विनी, ये जो सामने का पैच दिख रहा 4 एकड़ का, ये इन्होंने अपने हाली जिन्होंने उनकी बहुत सेवा करी थी, खुशी लाल, उसको दान दे दी थी। और ये दान उन्होंने जमीन दी थी बगैर किसी को बताए हुए। ये उनसे खुश होके उन्होंने इसको जमीन दे दी थी, दान दे दी थी, जिससे आज खुशीलाल के पूरा परिवार पूरा परिवार वेल सेटल्ड है। ये उनकी कुकरेजा साहब की खासियत थी, जिसके बारे में उन्होंने किसी से जिक्र भी नहीं किया। दो बार बने ये आईजी मध्य प्रदेश, और जो दूसरा टेन्योर इनका रहा उसमें एक एजिटेशन हुआ था एक पुलिस का, जो कहते हैं यूनियन बनने का, तो वो पिताजी ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी ख़त्म करने में। लोग ही रहते थे बहुत ज़्यादा सोशली या ज़्यादा फ्रंट में नहीं आते थे। मुझे बहुत चीज़ें याद हैं आज, जैसे हर आदमी एक सायरन लगाता है, मेरे पिताजी ने कभी भी सायरन नहीं लगाया उस ज़माने में। फ्लैग लगाते हैं, फ्लैग कभी नहीं लगाया उन्होंने। बहुत ही सिंपल लिविंग करते थे, कभी कहीं पे किसी पार्टी में नहीं जाते थे, बहुत रेयर जाते थे। तो बहुत ही एक लो की होमली आदमी थे। और मैं एक किस्सा हर वक्त बताता हूँ कि कितनी अच्छी दोस्ती ब्यूरोक्रेसी और नेताओं में होती थी, क्योंकि जिस वक्त पिताजी के रिटायरमेंट के मात्र 6 महीने पहले अर्जुन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, और मैं वहीं बैठा हुआ था जब फ़ोन आया था कि कुकरेजा साहब आपको अब आईजीपी से पद से हटाया जाता है। तो पिताजी गए अर्जुन सिंह जी के पास, और अभी भी मुझे बिल्कुल याद है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अर्जुन सिंह जी ने बोला था कि कुकरेजा, मुझे इस चीज़ का डर है कि तुम शुक्ला बंधुओं के ज़्यादा नज़दीक हो, इसलिए मैं तुम्हें हटा रहा हूँ। लेकिन उसके बावजूद हटाया, और उनका ये भी था कि मैं आईजी उसी को रखूँगा जिसके साथ मुझे बहुत विश्वास है। लेकिन पिताजी के साथ अंत तक, जब तक अर्जुन सिंह जी रहे, खूब अच्छी दोस्ती रही, खूब अच्छी इनकी फ़ोन पे बातचीत रही। तो ये उस ज़माने की दोस्ती हुआ करती थी, ब्यूरोक्रेसी टू ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी टू पॉलिटिशियंस। वो एरा अलग था, एरा ही ख़त्म हो गया। सारे हम सफर वाक़या हुए, खाक बन गए या हवा हुए। सारे हम सफर वाक़या हुए, खाक बन गए या